न जाना सब ते वड्डा, जिन कल राखी। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी। गुर नानक जिन सुनया पेखिया, से फिर गर्भास न। सुकाओ टल गुर सेवि, अहनस सहज। दर्शन परसय जन्म मरण दुख, होवै सिफत सम। नूरे अरसों कुरसों, तुद डिठे सचे। मल जन्म जन्म दी, तुद डिठे सचे। मल जन्म जन्म दी कटी है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। देव गंधारी पंजवा, सो प्रभ जत कत पेखियो नैनी। सुखदाई जीवन को दाता, अमृत झांकी बैनी रहाओ। अज्ञान अंधेरा संति काटिया, जी दान गुर दैनी। कर कृपा कर लीनो अपना, जलते शीतल होनी। सो प्रभ जत कत पेखियो नैनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्व शक्तिमान पतत पावन, दीन दुनिया दे मालक, रहमतां दे सागर, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभायमान हो रही गुरु की संगत। आप संगतां ने सतगुरां दी इलाही गुरबाणी दे कीर्तन सरवण कीते। मिलिया होया समा सवास सफले बनाए ने। इस वेले लड़ीवार गुरबाणी की कथा जो सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने, आओ कुछ समय वास्ते अपने मन के ध्यान नूं टकाइए। सतगुरां दे चरणां दे विच और बड़ी भावना दे नाल अमृत गुरबाणी दी जो विचार सतगुरु जी बख्शिश करते ने, सरवण करके मिलिया होया समा, मिले हुए सवास सफले बनाइए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। देव गंधारी पंजवा, सो प्रभ जत कत पेखियो नैनी। देव गंधारी रागनी दे अंदर गुरु अर्जन साहब जियां दा ये शब्द आपां सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करदे, जिधर देखते हाँ उधर ही परमात्मा नज़र आउंदा है। जत्र जाऊं तत्र बीठल पहला, जिधर भी जांदा हाँ, जिधर भी देखदा हाँ, जो बीठल परमात्मा है वो उस पासे नज़र आउंदा है। चीटी ते कुंचरिया ससूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। निक्के तो निक्का जिहड़ा जीव है उहदे विच भी उसकी जोत है। जिहड़ा वड्डे तो वड्डा जीव है उसदे विच भी वो आप सुभायमान है। ते सतगुरु बख्शिश कर रहे ने, कहन लगे भाई वो परमात्मा बड़ा समर्थ है
ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਗੀ ਬੈਣੀ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੀ ਬੈਣੀ, ਬੈਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਚਨ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਸੰਤੀ ਕਾਟਿਆ ਜੀ ਦਾਨ ਗੁਰਦਣੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦਾਨ ਗੁਰਦੈਣੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਨ, ਸਾਧੂਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਭਗਤ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗ ਲਈ, ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਸਾਧੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਲੀਨੋ ਆਪਣਾ ਜਲ ਤੇ ਸੀਤਲ ਹੋਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਲਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਸੀਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ, ਭੱਜਦਾ ਨੱਠਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਛ ਉਪਜਨਾਇਓ
ਨਹ ਉਪਜੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। मैं कोई धर्म का कोई चंगा कर्म नहीं किया। धर्म के चंगे कर्म की ने? गुरु की सेवा करनी, संगत की सेवा करनी, दान करना, पुण्य करना, यात्रा करनी। ये धर्म के कर्म मन्ने जाते ने। 10वें पातशाह महाराज साहब जी ने भी आख्या भी साडा सिख धार्मिक स्थानां की यात्रा करे, गुरु स्थानां की यात्रा करके उत्थे बंदगी करे, इतिहास तो जाणू होवे भी मेरे गुरु ने इत्थे की कौतक वरताया है। कई बारी असी एक एक स्थान के कई बारी दर्शन कर लेंदे ते कई स्थानां ते असी जांदे ही नहीं। महाराज कहन लगे ये धर्म के कर्म ने। यात्रा करनी है, दान करना, पुण्य करना, संगत की सेवा करनी और सब तो वड्डा काम नाम जपना। पातशाह कहन लगे कर्म धर्म काछ उपज ना आयो। धर्म के जिहड़े कर्म करने सन मैं कोई भी नहीं किया, ना यात्रा, ना दान पुण्य, ना सेवा, ना नाम जपया। नह उपजी निर्मल करनी, ते मेरे मन में निर्मल करनी, निर्मल चंगे पवित्र काम करने वो भी नहीं पैदा होए। कदे विचार ही नहीं आया भी मैं चंगा कर्म करा। ते सब तो चंगा कर्म है परमात्मा की भगती करनी। जे कोई पूछे ना निर्मल कर्म की हुंदा, निर्मल कर्म यह है परमात्मा की भगती करनी। ये है सब तो वड्डा निर्मल कर्म। ना कदे रब की भगती की है, ना कोई कदे कर्म धर्म का काम किया है। सियानप संजम नानक लागो गुर की चरणी। हुण ये समझ आ गई है भी मैं छड्ड देवां सारियां अपने मन दियां चतुराइयां ते सियाणपां। चतुराई दे नाल कदे परमात्मा नूं नहीं मिलिया जांदा, सियाणप दे नाल कदे नहीं हो मिलदा। भोले भाए मिले रघुराया, वो तो भोले भाव दे विच ही मिल जांदा। सतगुरु पातशाह कहन लगे इस करके बंदिया छाड़ सियाणप, ये सियाणपां छड्ड दे, तैनूं बचा नहीं सकणगीआं। ते पातशाह दा एक बचन आपां होर पढ़दे हां, सहस सियाणपां लख होहे तां एक ना चलै नाल। सियाणपां दा भरिया होया, चतुराई दा भरिया होया, पर जदों जमा ने लैण वास्ते आउणा एक भी सियाणप उस वेले चलनी नहीं। किसी भी सियाणप ने तेरे नाल जाके जमा दे कोलों तैनूं छुड़ाउणा नहीं है। ते पातशाह कहन लगे इस करके छाड़ सियाणप सगली नानक। ऐ भाई प्यारे सारियां सियाणपां जड़ियां ने उन्हां नूं छड्ड देना कर। छाड़ सियाणप संजम नानक, सब कुछ छड्ड के लागो गुर की चरणी। जे लगना है ना तो गुरु के चरणों के नाल लग, अपनी सियाणप नूं परे कर दे। ये बचन कर गुर की मातू लेह ए आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। गुरु तो बिना बड़े बड़े सियाने होए दुनिया में डुब गए, खत्म हो गए, पर तरे वो सफले वो होए जिन्हों ने उहदे नाम नूं जपिया है। देव गंधारी पंजवा हर राम नाम जप लाहा। इस करके भाई गुरु अर्जन देव पातशाह फरमाउंदे ने भाई बंदिया राम दे नाम दा जपन रूपी लाहा लै। लाभ की करना? रब दे नाम नूं जपना। दुनिया दे विच लाभ खट ला, एक दुकान तो दो दुकानां बना ला। दुनिया में लाभ ये खटिया भी एक शोरूम तो दो बन गए ने, लाभ खट लिया। दुनिया में लाभ ये खटिया भी अद्धी जमीन तो डबल हो गई है, 5 तो 10 हो गई है। दुनिया में लाभ ये खटिया भी मैं एक दियां 2 नौकरियां करदा हाँ। दुनिया में लाभ ये खटिया भी मैं दिने भी काम करदा और रात नूं भी करदा हाँ। पर जिन्ने लाभ आपां गिने ने जदों मर के दुनिया तो जाना है, लाभ कोई नहीं तेरे नाल जाना। किसी ने ये नहीं कहना भी बापू चलिया तो इन्हें 2 दुकानां बनाईयां एक नाल तोड़ दईए, इन्हें जमीन डबल कर दी है कुछ नाल इहदे पल्ले बन दईए। इन्हें ये कर्म वास्ते दिने रात ये जागया भजा फिरिया है, ये कर्म इहदे नाल तोड़ दईए, नहीं चलेगा नाल। पर एक कर्म तेरे नाल कीता नाल जाना, जिहड़ा तू नाम जपिया होवेगा तेरे कोलों खो नहीं सकेगा कोई भी। जदों कोई बजुर्ग जां कोई मौत नूं प्राप्त हो जाता ना व्यक्ति, उन्हें गल विच जे कोई हार पाया जां उंगलां दे विच कोई छाप पाई हुई है सोने की, जां उहदे खीसे दे विच कोई बहुती माया होवे ते पुत्र धीआं कढ लैंदे भी ये पासे कर लईए, ये क्यों नाल जान देनी है। तेरे नाल तन दे उन्होंने कुछ जान नहीं देना,
पर जिहड़ा तू नाम जपिया होवेगा उन्होंने कोई खो ही नहीं सकता, कोई रख ही नहीं सकता भी नाम इहदे नालों ला लईए, क्योंकि नाम उन्हां दी पहुँच तो परे है। पातशाह कहन लगे भाई हर राम नाम जप लाहा, ये है लाभ। दुनिया के लाभ तो बड़े खट्टे, दो दो नौकरियां कीतियां, दोहरियां दोहरियां कमाइयां कर लियां, दोहरे दोहरे बिजनस खड़े कर दिते, पर दुनिया तो जान वेले दोहरे तेरे कीते हुए काम तेरे नाल नहीं चलने। दुनिया तो जान वेले वो चीज़ नाल चलनी है जिहड़ा परमेश्वर नूं जपिया है। ये है लाभ। असी सोचते हैं भी मैं इन्नी कमाई की, मैं लाभ खट लिया, मैं इन्ना धंधा बिजनस व्यापार किया, मैं लाभ खट लिया, पर वो तेरे नाल जान वाला नहीं। इस करके हर राम नाम जप लाहा, रब दे नाम का लाभ जिहड़ा ये जप जप के इकट्ठा कर, क्योंकि लोक परलोक भी तेरे नाल निभण वाला है। गत पावै सुख सहज आनंदा, काटै जम के फाहा। सतगुरु पातशाह कहन लगे सहज सुख नूं पावेंगा, अचुत सुख जिहड़ा कदे मुके ना, आनंद नूं प्राप्त करके गत पावै, मुक्ति नूं पा लवेंगा, मुक्त हो जाएगा। दुनिया विच मुक्त नहीं होया जांदा, वार वार जमदा, वार वार मरदा। दुनिया विच मुक्ति तां मिलेगी जे नाम जपेगा। जदों किते दान की गल आवेगी, जदों किते पुण्य की दान गल आवेगी, उदों गल ये नहीं नाल आवेगी भी मुक्त हो जाएगा। दान करके मुक्त नहीं हो सकता, पुण्य करके मुक्त नहीं हो सकता, इन्हां चीज़ां ने मुक्ति नहीं दिवाउणी है। मुक्ति केवल ते केवल जदों मुक्ति की गल आवेगी, उदों नाल परमात्मा दे नाम की गल आवेगी भी नाम तो बिना मुक्त नहीं होया जाना। ते सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे गत पावै सुख सहज आनंदा, काटे जम के फाहा। गुरु जमां दी फाही कट दिंदा, तोड़ दिंदा जिहड़े गुरु शरण विच आउंदे हन। खोजत खोजत खोज विचारियो, हर संत जना पाया। महाराज बख्शिश कर दे, खोजत खोजत लभदियां लभदियां, लभदा रहा, पर जदों इन्नी कोशिश की है, इन्नी मेहनत की है, तो खोज विचारियो, फिर संतां दा रस्ता खोज के लभ लिया, विचार प्राप्त हो गई। वो रस्ता लभ्या संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी। वो मिलिया भी आ रस्ता संतां दे घर नूं जांदा, ये रस्ता सत संगत नूं जांदा है। जदों वो रस्ता मिलिया संगत नूं जाण वाला, परमात्मा दी बंदगी वाला, हर संत जना पाया, फिर मैं गुरु दे संतां दे कोल आ गया, नाम जपण वालियां दे कोल आ गया, उन्हां दा आसरा ले लिया। उन्हां दे कोल आके प्राप्त हो निधाना, जिनके कर्म लिखा। उन्हां दे कोलों नाम दा खजाना सी। जदों साधुआं दे कोले आया ना राह लभ के, ते की वेखदा भी नाम दा खजाना ते वो इकट्ठा करी बैठे। पर सतगुरु पातशाह कहन लगे निधान उन्होंने प्राप्त होया जिनका कर्म लिखा, जिन्हां दे मत्थे ते परमात्मा ने कर्म लिखिया सी भी ये जीव दुनिया में जाके नाम जपेगा, ये आत्मा जाके परमात्मा दे नाल जुड़ेगी, ये मनुख नाम जपेगा, बंदगी करेगा। जिन्हां दे कर्मां दे विच ये दात लिखी है, उन्हां ने इस दात नूं जपिया है। तो गुरु क्या सिखा जदों मत्था टेकदा ना गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपना सिर झुका के, उदों पहलां ये बेनती कर महाराज जी मेरे कर्मां विच नाम दी खैर पा दिओ, नाम दी दात मैनूं दे दिओ, मैं जपां जे मेरे तो नहीं जपिया जांदा। जदों ये तरला करके मत्था टेकेगा ना गुरु चरणां दे विच, ते फिर सतगुरु जी तेरे मस्तक ते कर्म लिख देणगे। किहड़ा कर्म लिख देणगे? परमात्मा दे नाम दा। ते जिन्हां नूं ये नाम दा कर्म प्राप्त हो गया, वो नाम नूं जप के लाहा प्राप्त करते हन। से बड़भागी से पतवंते से पूरे साहा। वो वड्डियां भागां वाले ने, वो ने पत इज्जत वाले। कई बार असी ये गल कर देंगे मैं तो बहुत इज्जत वाला, मैं तो अपने खिलाफ कदे किसी नूं बोलन नहीं दिता, कदे किसी नूं कुछ कह नहीं दिता, मेरे भाग बड़े चंगे ने, मेरे कर्म बड़े चंगे ने, मैं जो चाहवां मैनूं मिल जांदा, जो मैं करां हो जांदा। पातशाह कहन लगे ये दुनिया दे कर्म चंगे ने, दुनिया दी इज्जत चंगी जिस नूं दसदा,
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਹੈ, ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹ। ਸਾਹ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ। ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ, ਇੰਨੀ ਰੰਗਤ, ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਗੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਪਏ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੱਟ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਧਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾ ਮਨ ਕਹਿ ਹੰਕਾਰ ਫਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਿਹ ਹੰਕਾਰ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ?
हंकार करके की हो गया, अफारा तो भाव होंदा आफरिया होया, किसे नूं मिउंदा नहीं है, नहीं फलाना मेरे वर्गा नहीं, वो दूजा जिहड़ा उहदी शक्ल मेरे वर्गी नहीं, तीजे दा कपड़ा मेरे वर्गा नहीं, चौथे दा घर मेरे वर्गा नहीं, पंजवें दा उठना बैठना मेरे वर्गा नहीं है। इन्ना आफरिया होया भी दुनिया नूं अपने बराबर समझदा ही नहीं है। जो मैं खा लिया, जो मैं पा लिया, जो मैं बना लिया, बस मेरे कोल है। इस गल का बड़ा हंकार ते हंकार विच आफरिया होया है। जां आपां इस तरह भी कह सकते हाँ, मन किहे हंकार अफारा है बंदिया, किस गल दे हंकार करके तू अफारा कहिए अमोड़ हो गया है, मुड़दा ही नहीं किसे दे क्या। जे कोई कहंदा ना भी आह काम ना कर, कहन लगा तैनू नहीं पता, मैनू बड़ी अकल है, क्योंकि हंकार कहंदा भी तू ये क्या मुड़ना नहीं है। भावें किसी ने सियानी मत दिती है, पर हंकार उस सियानी मत नूं लैन नहीं दिंदा। रावण की घरवाली का नाम मंदोदरी है, तो कली घरवाली नहीं है भी घर का काम सामधी है, दफ्तरी काम भी नाल सामधी है, वजीरपुणा भी नाल करदी है, नाल वजीर भी है। राज घराने के काम इहदी सहमति दे नाल इनू दस के इहदी आग्या लैके फिर हुंदे। कली घरवाली नहीं, रावण की वजीर भी नाल है, सलाह दिंदी है हरेक काम दे विच भी आह काम इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए। तो जदों सीता नूं चुक के लै आंदा ते हनुमान जी आए, उन्होंने आके आख्या भी सीता नूं वापस कर दिओ, ते तुसीं गलती कीती है, माफ़ी मंग लो तो जंग नहीं होवेगा। जंग दे विच जवान मर जाणगे, फौज मर जाएगी, कई बच्चे अनाथ हो जाणगे, कई बीबियां विधवा हो जाणगियां, आपां नूं जंग नहीं करना चाहिए। जदों ये गल राजे की कचहरी में पहुंची, रावण की कचहरी में पहुंची, तो मंदोदरी उत्थे बैठी हुई है, रावण की घरवाली। उन्हें सुनिया, कह लगी गल तो ठीक है, पहला गलती असी कर लई है, पर फिर भी सानू एक मौका दिता जा रहा भी असी वापस करके तो माफ़ी मंग लईए। तो जंग दे विच नुकसान होना, सूरमे मर जाने ने, देश जिहड़ा करजाई हो जाएगा, तो है तो वड्डे दुख वाली गल। जे जंग टलदा तो टलना चाहिए। सारियां तो पहला मंदोदरी ने आख्या रावण नूं, कहण लगी पति देव जी ये बड़ी चंगी गल है, अपनी चंगे कर्म ने जो आपां नूं इहो जी सलाह, इहो जिहा प्रस्ताव आया, तो आपां नूं सीता तो आपां की लैणा, इहनूं वापस करो तो आपां माफ़ी मंग लईए। माफ़ी मंगण दे नाल कोई छोटा नहीं हो जाता। जे असीं गुनाह कीता है, कर्म कीता, पाप कीता, तो माफ़ी तो मंगनी पवेगी। मंदोदरी की सलाह तो बड़ी चंगी है, पर रावण हंकारी है ना, आफरिया होया हंकार विच, तो वह नहीं मुड़िया। कहण लगा तैनू नहीं पता, तू की जानदी है जंग बारे, तू की जानदी है सूरमियां बारे। जे अज मैं माफ़ी मंग लवांगा, मेरा नक उच्चा किवें रहेगा, लोग की कहणगे भी रावण माफ़ी मंगिया, मैं नहीं मनांगा। घरवाली ने मोड़न का यतन किया भी मुड़िया, माफ़ी मंगिया छोटे नहीं होवांगे, पर हंकार कहन लगा रावण नूं भी तू मुड़ना नहीं है, तू नहीं मननी गल। रावण ने नहीं गल मनी, अपनी मंदोदरी नूं सगों अपनी घरवाली नूं माड़ा चंगा कहा, पर यह प्रस्ताव मन्निया नहीं। तो की होया, जंग होया। जंग दे विच रावण की लंका भी सड़ गई, घर भी सड़ गया, पुत्र भी मर गया, पोतरे भी मर गए, आप भी मर गया। इत्थों तक के खानदान दे विच अगे रहा ही कोई नहीं भी जिहदे तो गां वंश चले, जिहदे तो गां कुल चले, रह ही कोई नहीं गया, सारे दे सारे मुक गए। पर तां मुके भी हंकार दे विच सलाह नहीं चंगी मन्नी। कहन लगा नहीं, मैं नहीं किसी दे क्या मुड़दा, मैं तो जो चाहांगा वो करांगा। ते सतगुरु पातशाह कहन लगे मन के हंकार अफारा, किस हंकार करके अमोड़ हुंदा जा रहा भी किसी दे मोड़िया भी मुड़दा नहीं, अपनी मर्जी मगर लगा होया है। दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर, जो दिशा सो छारा। तेरे अंदर विषयां दी दुर्गंधी है। हंकार करदा ना भी मैं नहीं किसी दे आखे लगना, पर तेरे अंदर की है, तेरे अंदर है विषयां दी गंदगी, वकारां दी। अंदर दी गंदगी दे नाल तू बाहरों भी गंदा हो चुकिया है, अंदरों बाहरों गंदा ही है, वकारां दे नाल भरिया होया। दुर्गंध अपवित्र पावन भीतर,
अंदरली वासना की दुर्गंधी करके बाहरों भी कह लीए अपवित्र हो गया, मलीन हो गया, गंदा हो गया। तो पातशाह कह लगे जो दिसै सो इशारा, जो दिसदा पिया स्वारूप है, फिर बख्श दे हाना। दुर्गंध अपवित्र पावन भीतर, जो दिसै सो इशारा। तेरे अंदर दुर्गंधी विषयां दी है, विकारां दी, अंदरों तां मैला हो गया। हर वेले मन दे विच काम क्रोध दी विचार चलदी रहिंदी है, ईरखा दी विचार करदा रहिंदा, अंदरों भी इन्हां माड़ियां विचारां दे नाल गंदा हो गया ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੇ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਨ ਜਿਨ ਧਾਰਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਲਪਟਾਵੇ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਪਟਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ उस परमात्मा नूं याद करना छड्ड के अवर लपटावै, होरां दे पिछे लंपट होया फिरदा, दूजियां दे पिछे दौड़िया फिरदा। मर जन्मै मुग्ध गवारा, जिहड़े इस तरह भजदे ने वो वार वार जमदे, वार वार मरदे, कई वार जन्मां विच आउंदे हन। अंध गुंग पिंगल मतहीना, प्रभ राखो राखनहारा। सतगुरु जी बख्शिश करदे ये मनुख अन्ना है। तो जदों ये गल आवेगी ना भी अन्ना है, तो असीं सवाल करांगे भी अन्ना तो मैं है नहीं, मैनूं तो अखां तो दिसदा। सतगुरु पातशाह कहन लगे असीं ये बचन करदे पए हां, तेरी ज्ञान वाली अख खत्म हो गई है, ज्ञान नहीं रह गया। कर्म करन तो पहलां सोचिया नहीं भी इहदा फल की मिलना, ज्ञान दी अख तेरी मुक गई है। तो दूजी अख सी वैराग दी, वो भी तेरी खत्म हो गई है। नहीं सोचिया भी दुनिया तो नाल की लैके जाना। ज्ञान ते वैराग दियां दोवें अखां तेरियां बंद हो गईयां, तां तैनूं अन्ना आखिया। ते दूजा बचन महाराज ने आख्या गुंग, गुंग नाम है गूंगे दा। असीं आखांगे महाराज मेरी ते जुबान बड़ी लम्मी है, हर वेले तुर तुर करदी रहिंदी है, मैं गूंगा किवें होया? पातशाह कहन लगे तू गूंगा तां है, तेरे जुबान दे विचों प्रीति खत्म हो गई है, तेरी जुबान विचों प्रेम खत्म हो गया, तेरी जुबान विचों मिठे बचन खत्म हो गए ने, हर वेले नफरत दे बोल बोलदा रहिंदा, तां आखिया भी तू गूंगा हो गया। ते तीजा बचन आ गया पिंगल। पिंगला उहनूं कहा जांदा जिहदे पैर ना होण। महाराज मेरे ते पैर ने, मैं ते भज्जा फिरदा। सतगुरु पातशाह कहन लगे पैरां नाल भज्जा फिरदा, पर रब दा डर तेरे मन चों खत्म हो गया। जे रब दा डर हुंदा ते माड़े पासे भज के ना जांदा। रब दे डर रूपी पैर तेरे खत्म हो गए ने, तां तैनूं पिंगला आख्या भी तैनूं भै कोई नहीं रह गया परमेश्वर दा भी मैनूं सज़ा देवेगा। मत ही ना, तेरी मत मर गई है, तेरी ऐसी हालत है, पर अरदास करया कर भी रखन वाले परमात्मा रख लेना कर। करण करावन हार समरथा, क्या नानक जंत विचारा। वो परमात्मा सारे कारनां नूं करन वाला जीव की है, उहदे अगे तरला ही कर सकदा है। देव गंडारी पंजवा, सो प्रभ नेरे होते नेरे। भाई वो परमात्मा नेड़े तो नेड़े है, इन्ना नेड़े है भी साडे हत्थां पैरां तो भी वो नेड़े है। जे तू समझ लवें, जान लवें, वो सब तो नेड़े है। सिमर ध्याए गाए गुण गोबिंद, दिन रैन सांझ सवेरे। उस परमात्मा दा सिमरन करया कर, उन्होंने ध्याया कर सांझ सवेरे, दिने अते रात, हर वेले उसनूं जपिया कर। फिर साडा सवाल हो जाता भी मैं तो काम भी करना। महाराज कहते जे काम करना तो सांझ सवेरे, सांझ जदों सांझ पैंदी है, शाम नूं भी याद कर लिया कर, ते सवेरे तड़के अमृत वेले भी याद करया कर। मन बानी करके उहदे नाम नूं जपिया कर। उधर देहे दुर्लभ साधु संग, हर हर नाम जपेरे। ये जेड़ी देही है ना दुर्लभ है, लभण वाली नहीं। खाण वास्ते एक दुकान तो समान नहीं मिलेगा, दूजी ते पैसा खर्चेगा मिल जाएगा।
पर जे तू पैसे लैके आखे ना भी मेरे वर्गा शरीर एक होर मिल जाए, वो नहीं मिलना। तां आख्या भी शरीर दुर्लभ है, पर इहदा उधार कर परमात्मा दा नाम जप के, तां इहदा उधार हुंदा है। करी ना मोहत ना चसा विलंबो, काल निते नित हेरा। बंदिया ये ना सोचिया कर भी मैं चलो अज टाइम नहीं, अज नहीं पाठ करना, मैं कल नूं कर लवांगा। कई बारी असीं सोचदे मैं अज नहीं जांदा संगत विच, कल नूं चले जावांगा। सतगुरु कहंदे इस गल दा एक घड़ी का भी इंतजार ना करया कर। एक घड़ी 24 मिनटां दी, 24 मिनट भी ना सोच भी मैं ये काम नाम जपन वाला, संगत में जान वाला, बाणी पढ़न वाला काम 24 मिनटां बाद कर लांगा, सोची ना कदे भी। ते मोहत नाम है अद्धी घड़ी का, 12 मिनट का। कदे ना सोची भी आह काम 12 मिनट ठहर के कर लवांगा। कदे ये ना सोची भी रब की बंदगी वाला काम मैं चसा, एक चसा ठहर के कर लवांगा। महाराज क्यों? सतगुरु पातशाह कहन लगे काल दी मौत दी नज़र तेरे उपर है, हर वेले तेनू वेखदा पिया, पता नहीं उन्हें तेनू कदों लै जाना, 12 मिनट का उन्हें तेनू समा देना है कि नहीं देना। इस करके नाम नू जपिया कर। अंध बिलाते काडो करते, क्या नाही कर तेरा। इस अंधी गुफा संसार तो परमात्मा कढ़ लै, की नहीं है तेरे घर में, तू सब कुछ कर सकता है। नाम आधार दीजा नानक, कहो आनंद सुख कनेरे। इस करके नाम दा आधार दियो, नाम आधार दीजै नानक को। महाराज मैनू नाम दा आसरा दियो, मैं तुहाडी शरण विच आ गया, ताकि मैनू कनेरे बहुते आनंदां दे समेत सुख प्राप्त हो जान। ये दात मैनू देना करो। छक्के दो सतगुरां ने इत्थे 2 छक्के लिखिया। सो 6 श्लोकां दा जां 6 शब्दां दा एक छक्का हुंदा। इत्थे 2 छक्के तो भाव है भी 12 शब्द गुरु अर्जन साहब जियां ने इत्थे पूरे कीते ने, उन्हां दी गिनती है 2 छक्के 12 शब्द। समय की समाप्ति, भुलां दी मुआफ़ी। गुरु रहमत करे दियो सज्जन आसीसड़ियाँ, जो होवे साहिब से मेल। अंध बिलाते काडो करते, क्या नाही कर तेरा। नाम आधार दीजे नानक को, आनंद सुख कनेरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।